प्रेजेंटेशन विजिबल है और मेरी आवाज आ रही? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज अ प्रोडक्शन ड्राइंग एंड व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ड्राइंग्स एंड व्हाट इज असेंबली ड्राइंग्स। ठीक है, असेंबली ड्राइंग्स क्या होती है, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ असेंबली ड्राइंग्स। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि what are the important elements of a production drawings and what is a production drawing. So the competitive manufacturing of mating parts need mass production and interchangeability. Means whatever be the machine, that machine consists of number of parts, a number of elements. So that number of parts or elements are joined together, assembled together. And it is not necessary that all the parts of the machine are manufactured in the same company. Some parts are procured from outside the company, that is from vendors, or there are other companies which manufacture these components. So the company which deals with the manufacturing of the main machine procures these components from the various companies and then assemble it and then sell in the market. So it is very necessary that the mating parts need mass production and there should be some interchangeability. Okay, say there is a component which is having some hole and there is a component in which the shaft is to be fitted to this hole, while the shaft is manufactured in company 1 and whole part is manufactured in company 2, while the machine is manufactured or assembled in a company 3. So थर्ड कंपनी जो है वो उसको असेंबल कर रही है, तो उसने शाफ्ट कंपोनेंट मंगाए जो कि कंपनी 2 ने बनाए हैं उसने, और एक होल वाला जो कंपोनेंट है वो कंपनी 1 ने बनाया है, तो उन दोनों की इंटरचेंजेबिलिटी होना चाहिए। मतलब शाफ्ट कैन बी यूज्ड ऑन दैट होल, उसमें फिट हो जाना चाहिए, और होल जो है वो शाफ्ट में दोनों की असेंबली जो है वो हो जाना चाहिए। सो दैट इज द इंटरचेंजेबिलिटी, and this interchangeability concerns the characteristics of machine parts which make them suitable for assembly without individual machining or fitting. So these parts which have been produced with all their dimensions within their predetermined limits need not be made in the same shop or even in the same company. So the aim is to manufacture the components in the true shape and size at the economical rate with highest quality. This we have to maintain. The shape and size should be true and the production should be economical and the quality should be highest. But because of the limitations of the main and machines, the parts produced are going to differ in the shape and size from its true geometrical form. So due to the limitations of the main, due to the limitations of the machine, or due to the limitations of the process, etc., it is not necessary that the object should be of same shape and size. So this deviation of part from its true geometrical form is known as geometrical deviation, and these variations of geometrical form is known as geometrical tolerances. If the object varies from its true geometrical shape and size, there is a geometrical deviation is there. So these variations of geometrical form, this is known as geometrical tolerances. And the deviations of size of the part from its design dimensions are termed as dimensional deviation, and this variation of size dimensions are known as dimensional tolerances. So we have geometrical tolerances and we have the dimension tolerances. Dimension tolerances means the variations in dimensions of an object
while geometrical tolerances means the variation in the geometry of the object. Okay, so this is the geometrical tolerances and the dimensional tolerances. Now, in a drawing of machine or machine parts, when it is submitted to the manufacturing shops, the following additional information should be incorporated. We have developed a drawing for a part, and that part needs to be manufactured. So the drawing of that part is handed over to the manufacturing department. But the drawing of that part should also consist of some informations that are required for the manufacturing purpose. And that these are the necessary informations. So what are these necessary informations? Number one, quantity to be produced. कि वो जो component है, वो जो part है, that part is to be produced in what quantity? One single part is required or multi parts is required. That is एक ही part चाहिए या उसके 100 parts चाहिए या 1000 parts चाहिए or maybe more. So that is quantity to be produced. That has to be mentioned on the drawing. Raw material size. Since वो जो ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल लेना होगा. सो व्हाट विल बी द रॉ मटेरियल साइज और किस फॉर्म में होगा? रेक्टेंगुलर बार के फॉर्म में होगा या सर्कुलर के फॉर्म में होगा? प्रिज्मेटिक रॉ मटेरियल प्रिज्मेटिक से में होगा या पिरामिडिकल में होगा या कोनिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा? दैट हैज टू बी मेंशन्ड. देन द ज्योमेट्रिकल टोन्सेस. ओके, that part is to be made. तो if there is a variation in the shape, तो permissible variation कितना होना चाहिए? So that is we have to mention geometrical tolerances कि इसमें इतना परमिट होगा तब ये पार्ट एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन वो एक लिमिट से ज्यादा वेरिएशन होगा तो that cannot be accepted, that will be rejected. So that has to mention the geometrical tolerances कि उसके शेप में क्या वेरिएशन, कितना वेरिएशन हम परमिट करेंगे शेप में. जैसे एक रेक्टेंगुलर सरफेस, एक रेक्टेंगल हमें बनाना है तो उस रेक्टेंगल की सरफेस जो हो वो स्मूथ हो, वो प्लेन हो, उसकी एजेस जो है वो भी स्ट्रेट हो, सरफेस फ्लैट हो. तो फ्लैटनेस में यदि वेरी होता है तो कितना वेरी करेंगे? वो लाइन की स्ट्रेटनेस में कुछ वेरिएशन होता है तो कितना वेरिएशन परमिट करेंगे? दैट इज द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस. देन द डायमेंशनल टॉलरेंसेस कि उसका साइज. हमने कहा कि ये जो एक रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगुलर जॉब है, इस तरह से रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक. तो ये सरफेस की फ्लैटनेस कितनी वेरिएशन चाहिए, या इस एज में जो स्ट्रेटनेस है ये कितना वेरिएशन परमिट करेगा? ये वाली एज इस एज के पैरेलल है तो यदि ये पैरेललिटी में कुछ वेरिएशन आता है तो कितना? ये एज इस एज के परपेंडिकुलर है तो इस परपेंडिकुलरिटी में वेरिएशन कुछ आता है तो कितना परमिसिबल है? ये एज और ये एज पैरेलल है तो इसमें कितना पैरेललिटी का वेरिएशन आ सकता है? ये वाली टॉप सरफेस बॉटम सरफेस के पैरेलल है तो पैरेललिटी में कितना वेरिएशन परमिट कर सकते हैं? सो दैट इज द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस. हाँ, डायमेंशन टॉलरेंसेस मींस कि द साइज, कि ये जो इसका साइज है रेक्टेंगल प्रिज्म का, है ना, तो ये सपोज 30 mm का है और ये डायमेंशन जो है वो 20 mm का है और ये डायमेंशन जो इसका दिस डायमेंशन ये डायमेंशन से 50 mm का है. सो 30, 20 and 50. तो ये डायमेंशन 30 का नहीं बना, 30 से कुछ कम हो गया या कुछ ज्यादा हो गया, ये 20 से कुछ कम हो गया ये ज्यादा हो गया, 50 से कुछ कम हो गया ये ज्यादा हो गया. सो कितना परमिसिबल है इस डायमेंशन के वेरिएशन में, कितना परमिसिबल चलेगा? सो दैट इज द डायमेंशनल टॉलरेंसेस. ये डायमेंशनल टॉलरेंसेस कहलाएगा. सरफेस रफनेस और सरफेस क्वालिटी. जो सरफेसेस बनेंगी तो इन सरफेसेस की क्वालिटी क्या होगी, कितनी स्मूथ होगी सरफेस. तो दैट सरफेस क्वालिटी हमें क्या मेंटेन करना है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं
उसकी मैक्सिमम, उस मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कि इससे इतनी सरफेस रफनेस मिलेगी हमें, या सरफेस क्वालिटी इतनी मिलेगी, इतनी स्मूथ सरफेस मिलेगी। देन मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, इसको किस मेथड से मैन्युफैक्चर करना है, मिलिंग से करना है, मिलिंग से करना है तो रॉ मटेरियल का साइज हो गया, फिर कितना मटेरियल रिमूव करना है, इसका जो रॉ मटेरियल साइज होगा उससे कितना मटेरियल रिमूव करना है, डेप्थ कितनी लेंगे, कट कितनी लेंगे, सो दैट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स वी हैव टू, इसको, इस पार्ट को इस मैन्युफैक्चरिंग मेथड से बनाना है। एप्लीकेबल नेशनल स्टैंडर्ड्स, और इस पार्ट को, इसको बनाने के लिए क्या नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसका हमें फॉलो करना है, डायमेंशन के लिए क्या नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, किस साइज में हमें स्टैंडर्ड साइज मिलेगा, एटसेट्रा। और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना हो, जैसे इंस्ट्रक्शन देना हो कि इसमें जो है वो सरफेस की ले की डायरेक्शन ये रखना है, या ये वाली सरफेस, दिस टॉप सरफेस मस्ट बी स्मूथ देन द अदर सरफेसेस, ये ज्यादा स्मूथ चाहिए, बाकी सरफेसेस रफ चल सकती है। तो एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज देयर और एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट इज देयर, ठीक है, सो दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड इन ड्राइंग। So these are the important informations other than the drawing। जो कंपोनेंट की ड्राइंग है उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन हमें उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ड्राइंग शीट में मेंशन करना है, ये सब चीज। सो द ड्राइंग ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ एनी मशीन पार्ट्स विद अबव इंफॉर्मेशन, इन सब इंफॉर्मेशन के साथ में इस पार्ट की ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग मींस दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू, ये, और साथ में हमने डायमेंशंस यहाँ पर बताए, और कितनी क्वांटिटी लिखी, इसका रॉ मटेरियल का साइज, मटेरियल, मटेरियल कौन सा वो भी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि ये वाला मटेरियल कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ज्योमेट्री में वेरिएशन, डायमेंशन में वेरिएशन, सरफेस क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, एप्लीकेबल नेशनल स्टैंडर्ड्स और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। ये सब जब हम इस ड्राइंग में, इस ऑर्थोग्राफिक व्यूज के साथ में जब ये इंफॉर्मेशन हम प्लेस करते हैं यहाँ पर, तब ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को तब हम कहते हैं प्रोडक्शन ड्राइंग और द ब्लूप्रिंट। देन इट इज नोन एज द प्रोडक्शन ड्राइंग और ब्लूप्रिंट, तब जाके ये प्रोडक्शन ड्राइंग कहलाएगी या ब्लूप्रिंट कहलाएगा। सो दिस इज क्लियर व्हाट इज प्रोडक्शन ड्राइंग और व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, नाउ we'll discuss further now the geometric tolerances, geometry के फॉर्म में कितना वेरिएशन, ठीक है, then we'll discuss further the dimensional tolerances and the surface roughness, manufacturing process, आपकी जो है वो there is a separate subject also for the manufacturing methods, production engineering or manufacturing processes, raw material means related to the material, आपने मटेरियल साइंस पढ़ा है, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस, समझते हैं कि किस तरह का ज्योमेट्री में क्या वेरिएशन हो सकता है। सो a shape of machine part is usually of prism, cylinders, cones and spheres। so any machine part, उसका जो shape है, that shape consist of this basic primitive shapes, prismatic, pyramidal, conical, spherical और cubical और tetrahedral और any other और combination of these shapes, ये shapes होते हैं, इनके combination से वो बनता है। The geometrical deviations in these solids are bound to occur during the production। so जब भी, whenever we manufacture or produce these parts, it is there always there ki there may be some variation in the geometry of the part। so what this geometrical tolerances indicate, so it indicate the conditions of straightness of edges, straightness of surfaces,
flatness of surfaces, parallelism, surface parallelity or edge parallelity, perpendicularity, edge perpendicularity or surface perpendicularity, angularity. Angular surfaces are there, angular edges are there. So that angularity की condition क्या है? 29 degree का angle है यदि तो whether it is a perfectly 29 degree or there is a variation in this angle. Symmetry, जैसे spheres, cones, cylindrical type of objects जो रहते हैं symmetry है. Concentricity and roundness, सर्कल बना है कि नहीं पूरा, कंसेंट्रिसिटी है कि नहीं, मतलब देयर आर टू राउंड सरफेसेस हैं तो परफेक्टली राउंड है या उनमें वेरिएशन है. ठीक है. सो these are the various conditions and on this basis मतलब इसमें वेरिएशन होगा तो there will be tolerances for this. तो कितना वेरिएशन हम परमिट करेंगे? So let's understand this. First, tolerance of straightness. So it is determined as the distance between two parallel lines in a plane P, right angle with the tested surface. जो surface है वो surface straight है या नहीं, उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके चेक करने के लिए जो मेथड है वो है कि there is another plane which is taken perpendicular to this surface. ये जो surface, जिस surface को measure करना है straightness, उसके perpendicular एक plane होता है measurement के लिए और उसमें दो पैरेलल लाइन होती है. उन दो पैरेलल लाइन के बीच में हम सरफेस को मेजर करते हैं इसकी स्ट्रेटनेस को. ये सो दिस इज द टेस्टेड सरफेस. ये टेस्टेड सरफेस है जिसको हमें टेस्ट करना है कि ये कितनी स्ट्रेट है. सो दिस इज अ प्लेन पी. ये एक प्लेन पी, इसमें हम मेजर कर रहे हैं ये दो पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इज डेल्टा. So this delta gives the permissible distance कि इसमें इतना वेरिएशन चलेगा. डेल्टा की कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू के अंदर ही यदि रहेगी पूरी सरफेस तो ये स्ट्रेटनेस हमें एक्सेप्टेबल रहेगी. यदि उसके बाहर हो जाएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. सो स्ट्रेटनेस टॉलरेंस कंट्रोल्स नंबर 1 द स्ट्रेटनेस ऑफ लाइन ऑन द सरफेस. किस लाइन पर, इस सरफेस पे कोई लाइन है उसकी स्ट्रेटनेस या सरफेस की स्ट्रेटनेस को चेक करते हैं. द स्ट्रेटनेस ऑफ अ लाइन इन अ सिंगल प्लेन, द स्ट्रेटनेस ऑफ एन एक्सिस, कि एक्सिस कितनी स्ट्रेट है. सो दिस इज द टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेटनेस. टॉलरेंस इज गिवन बाय दिस. से हमने यहाँ पे बोला कि दिस शुड बी लिमिटेड टू 0.001 mm. तो यहां से लेके जब हम यहां तक स्ट्रेटनेस मेजर करेंगे, यदि उसका वेरिएशन इतना आता है तो एक्सेप्टेबल है. और यदि इससे ज्यादा कहीं पे वैल्यू आ गई हमारी 0.002, सो स्ट्रेटनेस वेरी कर रही है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. टॉलरेंस ऑफ फ्लैटनेस. सो दिस इज एक्सप्रेस्ड, it is expressed as the distance between two planes M and M which enclose the tested surface between them. So flat surface कितनी flat है, ठीक है, सरफेस कितनी फ्लैट है, तो दो पैरेलल प्लेन ले M और N, इन दोनों के बीच का ये अमाउंट, दिस इज द टॉलरेंस ऑफ फ्लैटनेस. ये प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी से हमने बोला कि 0.002 mm का डिस्टेंस है. तो इसमें सरफेस यदि इन दो प्लेन के बीच में लाई कर रही है तो हम कहेंगे ये फ्लैटनेस एक्सेप्टेबल है, एल्स इट इज नॉट एक्सेप्टेड. सो इट कंट्रोल्स द डाइवर्जेंस और डिपार्चर ऑफ द सरफेस फ्रॉम अ ट्रू प्लेन. कितना फ्लैटनेस में वेरिएशन हो सकता है. द टॉलरेंस ऑफ फ्लैटनेस इज द स्पेसिफाइड जोन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. तो ये जोन क्रिएट हो गई दो पैरेलल प्लेन के बीच में. It does not control the squareness or parallelism of the surface in relation to other features. ये सिर्फ सरफेस की फ्लैटनेस चेक करेगा, लेकिन उसके रिलेशन में कि पैरेललिटी में कोई अंतर आ रहा है वो नहीं चेक करता. And it can be called for independently of any size tolerance. This is independently. Circularity.
So this is a condition. Circularity is a condition where any point of a feature's continuous curved surface is equidistant from its center, which lies in the same plane. से एग्जांपल की ये सेक्शन लिया, ये सेक्शन, दिस इज अ सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर यहाँ पे, तो ये जो सेक्शन है इस ए पे, ये ए, तो ये डॉटेड लाइन जो है ना ये रिप्रेजेंट करेगी सिलेंडर, ये सिलेंडर। तो ये जो सरफेस है सर्कुलर ना बनते हुए राउंड, सब वेरिएशन राउंड में आ जाता है ये, जैसे यहाँ पर ये देखो ये, और यहाँ आके देखो तो ये, तो वो जो है वो कितना इस शेप के चेंज में आप वेरिएशन परमिट करते हो, तो दैट इज गिवन बाय दिस टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल, इनका जो डिस्टेंस है इसमें जो हमें वो टॉलरेंस दिया हुआ है कि हाँ यदि ये हमारी सरफेस की सर्कुलरिटी इन दोनों सर्कल के बीच में लाई कर रही है तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो द टॉलरेंस ऑफ सर्कुलरिटी कंट्रोल्स द डाइवर्जेंस ऑफ द फीचर एंड द एन्युलर स्पेस between the two coplanar concentric circles defines the tolerance zone. So this is the tolerance zone. ये tolerance zone है कि हाँ अगर ये सिलेंडर का ये सर्कल जो है ना, ये यदि यहाँ से जाते हुए ऐसा हो जाता ये तो क्या हुआ, ये बाहर तरफ चला गया हमारे टॉलरेंस से। सो दिस शेप इज नॉट एक्सेप्टेबल नाउ। इस टॉलरेंस जोन के अंदर कैसा भी है ये सर्कुलर, so that is acceptable, ये acceptable रहेगा। Cylindricity, so the combination of parallelism, circularity and straightness defines cylindricity. So this is a combination of parallelism, circularity and straightness, वो cylindricity define करते हैं। So when applied to the surface of a cylinder and is controlled by the tolerance of cylindricity, इसके लिए cylindricity नाम का टॉलरेंस हम देते हैं, जैसे ये, ठीक है। सो दिस इज आवर सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस है, और ये इसकी सर्कुलर साइड व्यू। तो टॉलरेंस जोन, इसमें टॉलरेंस जोन क्या होगी, तो इसमें टॉलरेंस जोन है ये रही टॉलरेंस जोन, दिस इज द टॉलरेंस जोन, ये टॉलरेंस जोन साइड व्यू में देखें तो दिस इज द टॉलरेंस जोन। ये टॉलरेंस जोन इज द एन्युलर स्पेस बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, द रेडियल डिफरेंस बीइंग द टॉलरेंस वैल्यू टू बी स्पेसिफाइड। मतलब हम इसको ऐसा बोलें कि दिस इज अ हॉलो शाफ्ट, है ना, एक हॉलो शाफ्ट है जिसमें ये इंटरनल डायामीटर और ये वाला एक्सटर्नल डायामीटर। तो जो इंटरनल डायामीटर और एक्सटर्नल डायामीटर का जो डिफरेंस है ये आपकी टॉलरेंस जोन हो गई। मतलब सिलेंडर की सरफेस इस जोन के अंदर है, यहाँ इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक, तो ये एक्सेप्टेड है, ये सिलेंड्रिकल माना जाएगा। ये एक्सिस की स्ट्रेटनेस इस जोन पैरेलल टू दिस ये है, इसके पैरेलल रहेगी तो एक्सेप्टेबल। और सर्कुलरिटी, एक तो हो गया कि ये लेंथ सिलेंडर की सरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये, और दूसरी क्या हो गई कि इसकी सर्कुलरिटी, ये सर्कल, ये जो सर्कल बना है ये सर्कल के सर्कल के में वेरिएशन कितना, ठीक है, तो सर्कल के वेरिएशन कितना, तो ये वेरिएशन, दिस इज द वेरिएशन इन द शेप ऑफ द सर्कल। तो इस टॉलरेंस जोन के अंदर है ना ये वेरिएशन, so this is permissible, ये permissible, इतना वेरिएशन आ सकता है। ये exaggerated वैल्यू है, the distance is very very small, is in microns। जो टॉलरेंस होता है ना ये माइक्रोन में होता है, 1 micron is equal to 1/1000 mm, ठीक है। It should be mentioned that due to difficulties in checking the combined effect of the parallelism, circularity and straightness, it is recommended that each of these characteristics
इज टॉलरेंस इंस्पेक्टेड सेपरेटली। तो इसकी सिलेंड्रिसिटी की सरफेस इसको हम अलग से मेजर करते हैं, और ये सर्कुलर जो चेंज हो रहा है ये इसको हम अलग से मेजर करते हैं, सर्कुलरिटी टॉलरेंस, ये सिलेंड्रिसिटी टॉलरेंस। प्रोफाइल टॉलरेंस ऑफ लाइन। So profile tolerance of line is used to control the ideal contour of a feature. एक फीचर है, so this is the feature. अब ये फीचर ऐसा ही बनना चाहिए, यदि इसमें कुछ वेरिएशन आता है तो कितना आप परमिट करोगे। so उसके लिए क्या करेंगे, टॉलरेंस जोन प्रोवाइड करेंगे कि ये मिनिमम हो गया और ये इसका मैक्सिमम वेरिएशन हो गया परमिशन। ये तो इस जोन के अंदर ये है, इस जोन के अंदर मान लो प्रोफाइल डेविड ऐसा होता है, ये परमिसिबल है, ठीक है, दिस इज परमिसिबल। सो दिस इज द प्रोफाइल टॉलरेंस ऑफ लाइन, एक लाइन इस जोन में है। ये दिस इज थ्योरेटिकल प्रोफाइल विद बायलैटरल टॉलरेंस। ये थ्योरेटिकल प्रोफाइल है, करेक्ट, ये चाहिए बनाना है। और इसके लिए एक लिमिट ये दी कि ये अपर इतना जा सकता है और लोअर इतना जा सकता है, तो ये टॉलरेंस जोन हो गई इसकी। The contour is defined by theoretically exact boxed dimension. So जो ड्राइंग में होगा ना, ड्राइंग में हम उस डायमेंशन को ऐसे बॉक्स के अंदर मेंशन करते हैं। ये होता है theoretically exact dimension, ये इतना चाहिए। And must be accompanied by relative tolerance zone, और इसके साथ में टॉलरेंस जोन रिलेटिव कितनी होगी वो चाहिए। This tolerance zone, unless otherwise stated, is taken to be equally disposed about the true form, and the tolerance value is equal to the diameter of the circles whose center lies on the true form. तो ये है टॉलरेंस जोन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कैसी टॉलरेंस जोन है कि एक सिलेंडर बना दिया हमने, ऐसा सिलेंड्रिकल जोन, ये इसका सर्कल, ये सर्कल है ना, इसका सेंटर ये सेंटर लाइन को मैच करेगा, इस प्रोफाइल की सेंटर लाइन को, और जिसकी सर्कल की आउटर बाउंड्री ये इसके बराबर होगी, ये टॉलरेंस जोन के बराबर। If it is required to carve for the tolerance zone to be positioned on one side of the true form, that is unilaterally, the circumference of the tolerance zone circle must touch the theoretical contour of the profile. ये बायलैटरल दिया है, अब यदि यूनिलैटरल दे दें हम, सो यूनिलैटरल में क्या होना चाहिए कि ये सर्कल की बाउंड्री टच होनी चाहिए इसके साथ। Then profile tolerance of a surface. Profile tolerance of a surface is used to control the ideal form of a surface, which is defined by theoretically exact boxed dimensions. जैसे लाइन के लिए था, कंटूर के लिए था, वैसे अब सरफेस की बात करें। It must be accompanied by relatively tolerance zone. Relative tolerance zone, ये सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस को मेंटेन करना है। कि टॉलरेंस जोन दे दिया, स्फेरिकल टॉलरेंस जोन है, जिसका सेंटर होना चाहिए। तो दिस प्रोफाइल टॉलरेंस जोन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टेकन टू बी बायलैटरल, ये बायलैटरली होगी, मतलब इसका अपर वेरिएशन और इसका लोअर वेरिएशन दोनों होगा। एंड इक्वली डिस्पोज्ड अबाउट इट्स ट्रू फॉर्म सरफेस, ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, ये दिस इज अ सरफेस, इस सरफेस का ये बायलैटरल हम टॉलरेंस जोन देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। The tolerance value किसके बराबर है, is equal to the diameter of the sphere whose center line lies on the true form of the surface. तो एक स्फेयर से हम इसकी टॉलरेंस जोन स्पेसिफाई करते हैं, स्फेरिकल टॉलरेंस जोन है जिसका सेंटर इस लाइन पर लाई करेगा, सेंटर पे, जो प्रोफाइल का सेंटर है ना उसके ऊपर। The zone is formed by surfaces which touch the circumference of the sphere on either side of the ideal form. Ideal form के दोनों तरफ ये स्फेयर को टच करना चाहिए सरफेस,
ये टॉलरेंस जोन अभी प्रोवाइड की, स्फेरिकल टॉलरेंस जोन, एस मतलब स्फेरिकल, इसका डायमीटर 0.3. If it is required to call for a unilateral tolerance zone, then the circumference of the tolerance zone sphere must touch the theoretical contour of the surface. Unilateral में देते हैं तो कंटूर को टच करना चाहिए सर्कमफ्रेंस में. Parallelism, two parallel lines or surfaces are always separated by a uniform distance. ये एक्सिस होल की है. This axis of the hole must be parallel to this line. This line be parallel. तो पैरेलल कब होगी कि यदि हम बात करें इस लाइन का यहां से ऊपर वाला ये डिस्टेंस और नीचे वाला ये डिस्टेंस, लाइन के एंड पॉइंट का डिस्टेंस ले लें, ये दोनों यदि सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी. लेकिन यदि ये पैरेलल नहीं हो पा रही है, ये इतना दोनों का डिस्टेंस हम नहीं बना पा रहे, तो कितना वेरिएशन आप परमिट करोगे? सो दैट इज गिवन बाय दिस जोन. ये जोन यहां से लेके यहां तक ये जोन, ये लाइन यदि एसी हो तब भी एक्सेप्टेबल है. क्यों? क्योंकि इस जोन में लाइक है 0.2 माइक्रोन के बीच में. आइडियली इट शुड बी लाइक दिस, लेकिन एसी नहीं बनती तो हम कितना उसको परमिट करेंगे? तो ये टॉलरेंस, हमने ये टॉलरेंस स्पेसिफाई कर दिया कि इस डिस्टेंस के अंदर यदि ये लाइन लाई करती है तो हम कहेंगे कि पैरेलल है. इसके पैरेललिटी में इतना वेरिएशन, जैसे ये यहां से चालू किया यहां, इस तरह से. Lines or surfaces may be required to be parallel with datum plane or axis. Now, for this parallelity condition, a datum is always required. So this line is parallel to, so किसके parallel? So a datum line or a datum surface is required. So it is given as कि datum is this, इसके relative ये line parallel. So this is the datum. Tolerance zone, तो tolerance zone क्या होगी? Maybe the space between two parallel lines or surfaces, or the space contained within a cylinder position parallel to its datum. So this is the cylindrical, ये zone है इसकी parallelity. इसके बीच में यदि लाइन कैसी भी हो वो पैरेलल होगी इसकी. दैट इज अ परमिसिबल. इसका वेरिएशन यदि सब पैरेलल, एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बनती तो कितना वेरिएशन, ये वो वेरिएशन. The magnitude of the tolerance value is the distance between the parallel lines or surfaces of the cylinder diameter. Perpendicularity, this is also known as the tolerance of squareness. So जैसा parallelity था वैसे perpendicularity. So perpendicularity is the condition when a line, a plane or surface is at right angles to the datum feature. जो भी datum feature है उसके साथ में जो surface है उस surface का एंगल कितना है? 90 डिग्री है एग्जैक्ट, तो परपेंडिकुलर भी. ठीक है. सो अब datum is required here also. Parallelism में भी datum चाहिए, perpendicularity में भी datum required है. So observe this figure. ये फिगर है. इस फिगर में ये एक्सिस जो है सिलेंडर की, ये डेटम एक्सिस है, और ये होल हम यहाँ पे ड्रिल करना चाह रहे हैं. तो उस होल की जो एक्सिस है ये, दिस इज द एक्सिस ऑफ होल. ये एक्सिस ऑफ होल इस डेटम लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. परपेंडिकुलर. सो से दिस इज ये परपेंडिकुलर, ये सो दिस इज द एंगल 90 डिग्री. परपेंडिकुलरिटी ये मेंटेन करना. लेकिन इस एंगल में कितना वेरिएशन हम कर सकते, परमिसिबल है कि यदि ये परपेंडिकुलर नहीं बनी तो उसके लिए ये जोन हमने टॉलरेंस जोन प्रोवाइड कर दिया. यदि इस स्पेस के बीच में ये एक्सिस लाई करती है तो ये परपेंडिकुलर है, इसके इतना वेरिएशन हम परमिसिबल वेरिएशन. तो ये एक्सिस ऐसी हो गई या ये हो गई. So this is a perpendicular.
So the tolerance zone is the space between the two parallel lines or the surfaces. It can also be the space contained within a cylinder. All tolerance zones are perpendicular to the datum feature. The magnitude of the tolerance value is the specified distance between these parallel lines or the surfaces or the diameter of the cylinder. So this is the tolerance. ये tolerance हमने provide किया. Angularity. So angularity defines a condition between two related planes, surfaces, or lines which are not perpendicular or parallel to another. And some angle is there other than the 0 and 90 degree का angle. इसके अलावा कोई एंगल है तो वो कितना उस एंगल में कितना वेरिएशन आप परमिट कर सकते हो. Angularity tolerances controls this relationship. The specified angle is a basic dimension and is defined by theoretically exact boxed dimension and must be accompanied by tolerance zone. So 42 degree exact angle चाहिए तो इसको हम इस डायमेंशन को हम ड्राइंग पे एक बॉक्स में इनक्लोज करके शो करते हैं और साथ में टॉलरेंस जोन भी इसकी रहती है कि इसकी टॉलरेंस जोन कितनी रहेगी. सो जैसे ये सरफेस ये 42 डिग्री का ये एंगल होना चाहिए. ये सरफेस में 40 डिग्री तो इसके लिए ये जोन दे दी 0.2 माइक्रोन की डिस्टेंस इन दोनों के बीच में. तो ये सरफेस इस दोनों लाइन के बीच में कहीं भी लाई कर रही है तो ये एंगल इतना रहेगा. इस एंगल में इतना वेरिएशन परमिसिबल रहेगा. एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटम के साथ में क्योंकि एंगल ये तो एंगल इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम डेटम. ये डेटम से एंगल बनेगा रिलेटिव. दिस जोन इज द एरिया between two parallel lines inclined to the specified angle to the datum plane or axis. The tolerance zone may also be the space within a cylinder, the tolerance value being equal to the cylinder diameter. In this case, symbol phi precedes tolerance value in the tolerance field. So cylindrical zone भी हो सकती है ये. Position tolerance. Positional tolerance controls the location of one feature from another feature or datum. Say for example, ये हमारी एक कोई सरफेस है और इस सरफेस में इस लोकेशन पर ये होल है. ये पोजीशन इस लाइन से इसका रेफरेंस ये हो गया और इस सेंटर का मतलब सेंटर का जो लोकेशन है ये जो फीचर है सर्कल इसका जो लोकेशन है वो डिफाइन किया है इस एज से डिस्टेंस और इस एज से डिस्टेंस. सो दिस इज द पोजीशन. तो इस पोजीशन में कितना वेरिएशन परमिसिबल करते हो आप. मान लो ये यहाँ नहीं तो यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है. कहाँ पर आ रहा है सेंटर. ये रहा सेंटर. तो इस सेंटर के अबाउट हमने ये जोन दे दी. ये सेंटर इस जोन में लाई करेगा कहीं पे भी तो वो इसकी पोजीशन टॉलरेंस शो करेगा. A positional tolerance controls the location of one feature from another feature or datum. The tolerance zone can be the space between two parallel lines or the planes or circle or a cylinder. So this is a tolerance zone. ये tolerance zone बना दिया. इसके लिए ये सेंटर के लिए फीचर के यहाँ पे कि इसका सेंटर ये एग्जैक्ट डायमेंशन है यहाँ होना चाहिए पर ये सेंटर यदि यहाँ भी होता है तो ये टॉलरेंस जोन के अंदर है. यहाँ है तो भी टॉलरेंस जोन के अंदर है. यहाँ है तो भी टॉलरेंस जोन के अंदर है. यहाँ है तो भी टॉलरेंस जोन के अंदर है. हाँ लेकिन यहाँ हो गया तो आउट ऑफ टॉलरेंस जोन हो गया. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. This zone defines the permissible deviation of a specified feature from a theoretically exact position. The tolerance value is the distance between the parallel lines of the planes or the diameters of the circle or cylinder. The theoretically exact position also incorporates squareness and parallelism of the tolerance zones with the plane of the triangle. Okay, so this is the tolerance of position. ये position में कितना variation permit करेंगे. Concentricity and coaxiality. So two circles are said to be concentric when their centers are coincident. दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए. ये जैसे
दो सर्कल हैं, ये डॉटेड लाइन वाला ये और एक ये, इन दोनों का सेंटर ये होना चाहिए। लेकिन दोनों का सेंटर में भी कुछ वेरिएशन आता है कि एक से ये अंदर वाला सर्कल है, इसका सेंटर तो ये रहा, और ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका सेंटर यहाँ आ गया या यहाँ आ गया या यहाँ आ गया। सो दैट इज द कंसेंट्रिसिटी। तो इसके लिए हम यहाँ करते हैं, ये जोन हमने प्रोवाइड कर दिया सर्कुलर जोन, दोनों सर्कल का सेंटर इस जोन के अंदर रहेगा, तो दैट इज द कंसेंट्रिसिटी। ठीक है, कंसेंट्रिसिटी की जोन हो जाएगी। टू सिलेंडर्स आर सेड टू बी कोएक्सियल व्हेन द एक्सेस आर कोइंसिडेंट। और कोएक्सियलिटी मतलब सिलेंडर के केस में आता है कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, और ये हालो शाफ्ट की बात कर लें तो ये दूसरा वाला सिलेंडर है। तो ये दोनों फीचर की एक्सिस यही होना चाहिए। लेकिन यदि इसमें वेरिएशन आता है तो कितना, तो क्या ये यहां से लेके यहां तक ये इस तरह से एक सर्कुलर स्पेस हमने दे दी, ये ना सर्कुलर जोन ऐसे, ये की एक्सिस इसके अंदर लाई करेगी नहीं, तो कोएक्सियलिटी। देन सिमेट्री। So symmetry involves the division of spacing of features so that they are positioned equally in relation to a datum, which may be a line or plane. The tolerance zone is the space between two parallel lines or the planes, parallel to and positioned symmetrically with the datum. So there will be two datums here. ये datum A, ये सरफेस या ये लाइन ले, डेटम बी ये वाली सरफेस लें या ये लाइन लें। तो ये हमारी जो एक्स एक्स सरफेस है या ये एक्स एक्स लाइन है, ये दोनों के सिमेट्रिकल होना चाहिए, डेटम ए और डेटम बी के। इस सिमेट्री में कितना चेंज परमिट करोगे आप? सो दैट चेंज परमिट इज कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में यदि सरफेस या लाइन ये जो है फिट होती है तो ये सिमेट्रिकल है। So yeah, this is provided with this tolerance zone. The tolerance magnitude is the distance between these two parallel lines or planes. Symmetry also implies perpendicularity with the plane of the drawing, where depth is involved. ठीक है, so this is the tolerance of symmetry. Symmetry का tolerance है. Then circular runout and total runout. Circular runout and total runout. Circular runout is a unique geometrical tolerance. It can be a composite form control relating two or more characteristics, and it requires a practical test where the part is rotated through 360 degree about its own axis. The results of this test may include errors of other characteristics such as circularity, concentricity, perpendicularity or the flatness, but the test cannot discriminate between them. इससे हम सर्कुलरिटी का टेस्ट भी कर सकते हैं, कंसेंट्रिसिटी का भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलरिटी का भी कर सकते हैं, फ्लैटनेस का भी कर सकते हैं, सभी आता है इसमें। हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सर्कुलरिटी के लिए है या ये कंसेंट्रिसिटी के लिए या परपेंडिकुलरिटी के लिए। It should therefore not be called for where the design function of the part necessitates that the other characteristics are to be controlled separately. So जहां पर ये separately control करना है वहां पर इसको हम यूज नहीं करेंगे। So कैसे होता है सर्कुलर रनआउट, ये सर्कुलरिटी मान लो चेक करना है इसकी, तो यहाँ पे एक डायल गेज लगा दिया और इस पार्ट को रोटेट किया 360 डिग्री से। तो इस डायल गेज में कितना वेरिएशन आता है, इसका इंडिकेटर जो है कितना वेरी करता है। तो परमिसिबल लिमिट में वेरी कर रहा है तो इट्स ओके, यदि नहीं है तो ये सर्कुलर रनआउट नहीं, ये आउट है। The sum of any of these errors will be contained within the specified circular runout tolerance value.
The tolerance value is equal to the full indicator movement of a fixed point measured during one revolution of the component about its axis without axial movement. इसमें से हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया ये और यहाँ डायल गेज लगाया है और इस पार्ट को रोटेट किया, तो ये पॉइंट वापस एक राउंड के बाद में यहाँ पर आएगा, तो उसमें इस इंडिकेटर का मूवमेंट कितना होगा, ये मूवमेंट के स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतना मूवमेंट होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी उसकी वैल्यू है उसके बराबर, उसके अंदर यदि है ये, जब ये रोटेट हो रहा है, तो दिस इज नोन एज द सर्कुलर रनआउट। कितना परमिसिबल है, कितना आउट है सर्कुलेटिंग। Circular runout is measured in the direction specified by the arrow at the end of the ladder line, which points to the tolerance feature. ये किसके रिस्पेक्ट में? This is with respect to this axis. इस axis के रिस्पेक्ट में। Rotate part about datum axis. So this is the datum axis. उसके about rotate करना है इस axis। It must always be measured regardless of feature size. And it is convenient for practical purposes to establish the datum is the diameters from which measurement is to be made if true centers have not been utilized in manufacturing the part. So आपने देखा होगा कि सर्कुलर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट हम बाहर कोई मैन्युफैक्चर करते हैं, लेथ मशीन में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकालने के बाद में उसको फेस जो है हम इस सरफेस को बिल्ड करते हैं और उसके बाद में इस एक्सियल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये जो सरफेस हमने बिल्ड किया, ये इसके एक्सिस को रोटेट करते हैं। इन टोटल रनआउट में क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक्सियल डायरेक्शन में मूव नहीं करते हम इस गेज को सर्कुलर रनआउट के केस में। पर टोटल रनआउट में क्या होगा कि ये हम यहाँ पर सरफेस में इसका एक्सियल डायरेक्शन में भी मूवमेंट करेंगे इस डायल गेज का, तो हमें जो रीडिंग मिलेगी वो टोटल रनआउट बताएगा यहाँ से लेके ना। ये जो जितने भी पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, स्क्वायरनेस, एंगुलरिटी, सर्कुलर रनआउट, लोकेशन दैट इज द पोजीशन, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, जितने भी हैं जो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस, इनके लिए सिंबल्स आर देयर, सिंबल्स आर यूज्ड फॉर दिस, और ये सिंबल्स हम ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सिंबल्स हैं, जैसे फॉर्म के लिए टाइप ऑफ टॉलरेंस को फॉर्म टॉलरेंस है, दैट इज ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, फॉर्म में कितना वेरिएशन है ना। सो स्ट्रेटनेस का टॉलरेंस तो हम एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए डेटम इज नॉट रिक्वायर्ड, और स्ट्रेट लाइन द एज और एक्सिस ऑफ फीचर, ये एप्लीकेशन है इसका। स्ट्रेटनेस किसका, एक स्ट्रेट लाइन या एज हो सकती है, एक्सिस हो सकती है फीचर की। फ्लैटनेस के लिए रेक्टेंगल ये सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, डेटम नॉट रिक्वायर्ड, सो अ प्लेन सरफेसेस की फ्लैटनेस। राउंडनेस तो सर्कल इज देयर, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है राउंडनेस के लिए, डेटम इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बोर, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, दिस इज द एप्लीकेशन। इसके लिए हम सिलेंड्रिसिटी, तो ये सर्कल और इसके साथ में दो पैरेलल टेंजेंट लाइंस ही, तो दिस सर्कल। Datum not required for cylindricity, the combination of circularity, straightness and parallelism of a cylindrical surfaces, mating bores and plungers. Profile of a line, so this is a curved line, curved line बना दी, so datum not required. The profile of a straight or irregular line. Profile of a surface, so that is a semicircle, इस तरह से represent किया, datum not required. The profile of a straight or irregular surface का प्रोफाइल ऐसा है। ये सिंबल्स हम बताएंगे कि किस तरह का ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस देना है। ये एक लाइन बनी है, इसका मतलब स्ट्रेटनेस के लिए है, एक रेक्टेंगल ये बना है इस तरह से, पर फ्लैटनेस के लिए सर्कल बना है, तो राउंडनेस के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। देन ओरिएंटेशन, टाइप ऑफ टॉलरेंस, ओरिएंटेशन किस तरह का ओरिएंटेशन, पैरेललिज्म, ये दो पैरेलल लाइंस आर देयर, इसके लिए टॉलरेंस डेटम नीडेड है।
So this is a parallelism of a feature related to a datum. Can control flatness when related to a datum. Perpendicularity. So this perpendicularity symbol is there. Datum is required. Surfaces, axes or lines positioned at right angles to each other. Angularity. ये angularity के लिए है. Datum, yes, the angular displacement of surfaces, axes or lines from a datum. Profile of a line, ये line के profile के लिए, और profile of a surface, so datum is there, ये orientation के लिए control करने के. So the profile of a straight or irregular line positioned by the theoretically exact dimensions with respect to datum planes. The profile of a straight or the irregular surface positioned by theoretical exact dimensions with respect to datum planes. Then location, form, orientation और location, ये location type है. तो इन जो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस है ना, इसकी कैटेगरी देखें तो तीन कैटेगरी, एक फॉर्म की, एक ओरिएंटेशन की और एक लोकेशन की. फॉर्म में वेरिएशन, लोकेशन में वेरिएशन और ओरिएंटेशन में वेरिएशन. तो ये पोजीशन, सो दिस इज द सिंबल फॉर पोजीशन, ये पोजीशन शो करता है. डेटम नीडेड, सो स्टार, एक स्टार का मतलब है कि टू और मोर ग्रुप्स ऑफ फीचर्स आर शोन ऑन द सेम एक्सिस, they shall be considered to be single pattern when not related to datum. datum से related नहीं है तो single pattern में समझा जाएगा एक्सिस पे. two or more groups के फीचर्स हैं वहां पर. The deviation of a feature from a true position, concentricity and coexity. So ये दो सर्कल बनाएंगे हम, concentric circles. datum is required. The relationship between two circles having a common center or two cylinders तो कॉमन एक्सिस. सिमेट्री, तो ये सिमेट्री, दो छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन बीच में. डेटम, यस, द सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ अ फीचर रिलेटेड टू डेटम. प्रोफाइल ऑफ अ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस, ये लोकेशन के लिए भी आती है. रनआउट, another category is runout. So circular runout and radial runout. So for circular runout, this is the symbol, arrow, inclined arrow. और टोटल रनआउट में दो एरो कुछ डिस्टेंस पे शो करेंगे. सो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फिक्स्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अ पार्ट व्हिच इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट इट्स datum axis, and the relative position of a point when traversed along a surface rotating about its datum axis. मतलब एक सिलेंडर को हम रोटेट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पर है हमारा जो डायल गेज है, तो सर्कुलर रनआउट है. और यदि उस डायल गेज को हम सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल भी मूव कर रहे हैं तो वो टोटल रनआउट बताता है. मतलब सर्कुलरिटी का भी बताएगा, सर्कुलर कितना है और एक्सियल रनआउट कितना है. सो दीज आर द सिंबल्स फॉर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस. कुछ एडिशनल सिंबल्स आर आल्सो देयर फॉर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस. सो टॉलरेंस फीचर इंडिकेशन. अब टॉलरेंस का जो फीचर है उसको इंडिकेशन देने के लिए क्या तरीका है. सो दिस इज द वे, ये जैसे ये सरफेस है, इस पे ये एरो हमने लीडर लाइन से किया और ये बॉक्स यहाँ पे बना है बॉक्स. डेटम फीचर इंडिकेशन के लिए either this is the representation or this is the representation. या तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन हम फॉलो करें कि एक सरफेस ये जिसको हम डेटम बनाना है उस एज, उस लाइन, उस एक्सिस को, ये ट्रायंगल है यहाँ पर और ये स्ट्रेट लाइन और फिर बॉक्स में जाती है और यहाँ पर ए बी सी डी हम इस तरह से. डेटम टारगेट इंडिकेशन, जैसे ये सर्कल और यहाँ R4 और A1 कि R4 का रेडियस रखना है और इसका टारगेट क्या, A1 डेटम है इसका. थ्योरेटिकली एग्जैक्ट डायमेंशन, तो ये बॉक्स में हम शो करते हैं ये थ्योरेटिकली एग्जैक्ट डायमेंशन है और इसका ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस कितना है साथ में. यहाँ डायमेंशनल टॉलरेंस नहीं है सर, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं थ्योरेटिकली एग्जैक्ट डायमेंशन. ठीक है, यदि ये थ्योरेटिकली एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं होता तो यहाँ पे डायमेंशनल टॉलरेंस भी मेंशन होता, तब ये बॉक्स यूज नहीं होता. ये बॉक्स का मतलब है कि थ्योरेटिकली 50 तो 50 ही, उससे कितना वेरिएशन टॉलरेंस
उसके शेप में, ज्योमेट्री में। प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन, ये सर्कल के अंदर पी लिख देंगे कि ये टॉलरेंस जोन है प्रोजेक्टेड। मैक्सिमम मटेरियल रिक्वायरमेंट की कंडीशन है तो ये सिंबल प्लेस करेंगे। लीस्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट की कंडीशन है तो सर्कल के अंदर एल। फ्री स्टेट कंडीशन है, नॉन रिजिड पार्ट्स, तो सर्कल के अंदर एफ। ऑल अराउंड प्रोफाइल, सो दिस एरो इज यूज्ड, जो कि हमने वेल्डिंग में भी यूज किया है, ऑल अराउंड वेल्डिंग, तो ये सिंबल हम यूज करते हैं। इन्वेलप रिक्वायरमेंट की यहाँ पे सरफेस को इन्वेलप करना है, सो ई। ये कॉमन जोन, दो पार्ट्स के लिए कॉमन जोन है ये, तो सी जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब व्हाट इज द मेथड of indicating geometrical tolerances on drawing? So geometrical tolerances are indicated by stating the following details in compartments in a rectangular frame. So details हम की फ्लैटनेस है, सर्कुलरिटी है, जो भी है वो एक कंपार्टमेंट बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट बनाते हैं। रेक्टेंगुलर फ्रेम रहती है, उसके अंदर कंपार्टमेंट रहते हैं, एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट, चार कंपार्टमेंट ऐसे। उन कंपार्टमेंट में क्या रहा, द कैरेक्टरिस्टिक सिंबल फॉर सिंगल और रिलेटेड फीचर, टॉलरेंस की वैल्यू, टॉलरेंस की वैल्यू प्रेसिडेट करेगी फाइ से, यदि जोन सर्कुलर है या सिलेंड्रिकल है, और एस फाइ से यदि स्फेरिकल जोन है। देन लेटर्स और लेटर्स आइडेंटिफाइंग द डेटम और डेटम सिस्टम्स, डेटम कौन सा है उसके लिए लेटर, ये दो कंपार्टमेंट है, लेफ्ट हैंड में एक देखो ये कंपार्टमेंट और राइट हैंड में ये कंपार्टमेंट। जैसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और इसके हमने दो कंपार्टमेंट किए यहाँ पर, और राइट साइड में देखे तो यहाँ पे तीन कंपार्टमेंट आ गए। तो सिंबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस रेक्टेंगल फ्रेम से इसके कंपार्टमेंट है, इससे हम टॉलरेंस, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो कंपार्टमेंट होगा, ये पहला वाला, ये किस टाइप का ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर ये फ्लैटनेस वाला है। ठीक है, ये फ्लैटनेस का है, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, सरफेस के लिए एक रेक्टेंगल है ये लाइन होती है तो स्ट्रेटनेस के लिए होता है, सर्कल होता है तो सर्कुलरिटी के लिए होता है। यहाँ पर दिस इज कंसेंट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो पहला वाला जो कंपार्टमेंट है वो किस तरह का ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस दे रहे हैं वो। सेकेंड कंपार्टमेंट क्या शो करेगा, टोटल टॉलरेंस वैल्यू इन द यूनिट यूज्ड फॉर द लीनियर डायमेंशंस। जो लीनियर डायमेंशंस ड्राइंग में हमने यूज किए उसकी उसकी जो है वैल्यू होगी उस यूनिट में। ये जैसे 0.2, तो 0.2 mm यदि हम बात करें तो ये mm में होगी, और यहाँ पर 0.03 mm सर्कल सिलेंड्रिसिटी, ये ना कंसेंट्रिसिटी के लिए। फिर थर्ड कंपार्टमेंट डेटम आइडेंटिफिकेशन लेटर, जैसे ये कंसेंट्रिसिटी है तो कंसेंट्रिसिटी के लिए डेटम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, सो एक सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो ये डेटम यहाँ पे कंपार्टमेंट में डेटम प्लेस करेंगे थर्ड। सो दिस इज हाउ, जहां पर डेटम की जरूरत नहीं है वहां पे ये दो कंपार्टमेंट होंगे, और जहां पर डेटम की जरूरत है वहां पे तीन कंपार्टमेंट। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस ऑन दैट। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस हम स्ट्रेटनेस का, फ्लैटनेस का, सर्कुलरिटी का, रनआउट का, एंगुलरिटी का, पैरेललिज्म का, परपेंडिकुलरिटी का, हर एक का एग्जांपल्स लेंगे कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है और इसको ड्राइंग पर हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो दैट एग्जांपल्स विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, है ना, अभी इस क्लास में हम नहीं लेंगे आज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस। क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस लेक्चर में हमने ये सीखा है। These are the references. ठीक है,
सो और ये जो इंफॉर्मेशन है, मतलब ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस और वो जो हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन ड्राइंग किसको कहते हैं, तो प्रोडक्शन ड्राइंग में ये सब चीजें आती है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी होगी, उसमें सरफेस रफनेस या सरफेस क्वालिटी क्या होगी, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्री है उसमें यदि वेरिएशन होता है तो कितना परमिसिबल है, डायमेंशंस में वेरिएशन होता है तो कितना परमिसिबल है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड कौन सी इंप्लॉय करना है, और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट इज देयर है, उसके लिए कुछ हमें कुछ नोटिंग देना है कि ऑपरेटर जिसको पढ़े कि हाँ इसमें यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट ये है तो इसका ध्यान रखेगा वो। सो ये सब चीजें जब हम ड्राइंग के साथ, मतलब ऑर्थोग्राफ, किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग उसके साथ में ये सब इंफॉर्मेशन जब देते हैं ना, तब वो प्रोडक्शन ड्राइंग बनती है या ब्लूप्रिंट बनता है। ठीक है, सो प्रोडक्शन ड्राइंग या ब्लूप्रिंट क्या है, और उसका एक कंपोनेंट, उसका एक एलिमेंट हमने ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस वो हमने अभी डिस्कस किया कि कितने तरह के ज्योमेट्री में वेरिएशन हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप में, साइज में क्या वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या इसके एग्जांपल्स लेंगे वन बाय वन, कि स्ट्रेटनेस टॉलरेंस कैसे प्रोवाइड करना है, क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, सर्कुलरिटी का क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है आपको तो यू कैन आस्क मी।